Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Art of Leadership and Motivation, HRM 760. Lecture is 8, and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood. So today we have one of the most important areas, not only in Pakistan, this is all over the world. So whether we talk about Pakistan, whether we talk about any advanced country, whether we talk about developed countries or developing countries or developing countries, there is one phenomena, and that is really very important these days, is of downsizing. So when we talk about leaders, of course, leaders have many roles to play in an organization, and one of the most important area in which we need leader responsibility and role is of downsizing. So when we talk about role of leaders in the downsizing, who goes and who stays, this is really one of the most important and most touchy area in any organization, because it relates to the human resources. And when we talk about human resources, of course, human resource is the most important asset of any organization. So when we talk about most important asset of any organization, of course, this area becomes most important. So let's have a discussion on downsizing, and particularly the role of leaders in the process of downsizing. Now, first of all, let us discuss the faulty assumptions. And the number one is, leaders will handle the downsizing just fine because they are leaders. Now, what does it mean? It means that mostly people believe that we have leaders, हमारे पास बहुत से leaders हैं organization में, and when we do the downsizing, they will handle it because they are leaders. Another faulty assumption is, once we get past the downsizing, things will return to normal. Now, this is another faulty assumption that downsizing के बाद कुछ ही अरसे में हालात दोबारा ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल हो जाएंगे. This is what people believe. So they are not like focusing on the consequences of downsizing on the organization, and particularly on the human resources of that organization in which we are doing that downsizing. Another faulty assumption is, we only need to worry about what is happening inside the organization walls. Now, again, this is a narrow approach. Now, this is a major faulty assumption, number 3, that we need to worry only about whatever is going on within the organization. It means that we are ignoring the broader picture. We are ignoring what is happening around the organization. How this is possible that you ignore the outer aspect of an organization and you are only focusing on within the premises of an organization? Like, what about competitors? What about macro environment? What about the market conditions? What about your organizational goodwill? What about your organizational brand name or, reputation in the market as a good employer? What about your market share? So there are so many things we need to focus on. So mostly people believe that, and it is a faulty assumption that, कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो हमारे हालात हैं सिर्फ उसी पे फोकस करना है, and we have nothing to do and we need not to worry about कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या फोर्सेस हैं जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट है. Now, when we look at these faulty assumptions, what comes in your mind?
the very basic thing that comes in our mind is we are not dealing with downsizing in the most appropriate manner. If we take it like a narrow approach here, or if we put the responsibility on the shoulder of few persons in an organization, or we say that okay fine, it is a normal activity, it comes and goes and there will be no impact on the organization. So when we do the downsizing, people who remain in the organization, they are called survivors. How this is possible? Like for example, कि अगर हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आज एक अनाउंसमेंट होती है कि ओके अगर हम यहाँ 50 लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और हमें आज बताया जाता है कि आप में से 15 लोगों को आज से डाउनसाइज कर दिया गया है और कल से आपने ऑफिस नहीं आना, तो वो जो 15 के साथ जो उनकी मेंटल स्टेटस होगा, उनको जो स्ट्रेस लेवल होगा वो एक अपनी जगह है. सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 35 एम्प्लॉइज जो बाकी रह जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या उनके ऊपर इस बात का कोई इंपैक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा. तो डेफिनेटली जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, और अगर उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लाइन का सबब भी बन सकता है. सो आज के लेक्चर में डेफिनेटली हम बात करेंगे कि किस तरह से डाउनसाइजिंग के प्रोसेस को हम लेके आगे चलें, किस तरह से इस तमाम प्रोसेस को मैनेज किया जाए और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सो बिफोर डाउनसाइजिंग, ड्यूरिंग डाउनसाइजिंग एंड आफ्टर डाउनसाइजिंग. The tough part of downsizing is how to say what you don't want to say to people who don't want to hear it. Now, this statement is really very touchy. कि आप एक ऐसी बात जो आप कहना नहीं चाहते, आप उन लोगों को कैसे कहेंगे जो आप बात खुद कहना नहीं चाहते और जिनको आपने कहनी है वो इसको सुनना नहीं चाहते. Now that is the most toughest part of downsizing. Because what are the reasons? आप क्यों नहीं कहना चाहते? And what are the reasons कि लोग ये क्यों नहीं सुनना चाहते? Of course, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ए में आप काम कर रहे हैं, कई सालों से आप काम कर रहे हैं, और एक दिन अचानक आपको एक लेटर मिलता है कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड और आज से आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे. तो डेफिनेटली आपका एक रिलेशनशिप है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके कॉलीग्स हैं, उनका आपस में आप सबका एक रिलेशनशिप है. तो वो जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो जो रिलेशनशिप है तमाम एम्प्लॉइज का आपस में एक दूसरे के साथ, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? हर पर्सन का एक इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन में. आई स्ट्रांगली बिलीव कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. आपके छोटे टास्क हैं, आपके बड़े टास्क हैं, आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर आप सिर्फ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करेंगे और माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर इग्नोर करेंगे तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी टास्क को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर ना किया जाए. तो जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, जो लोग अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी एक रिलेशनशिप है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत स्ट्रेंथन हो चुकी है. दे आर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लॉयल विद ईच अदर. तो जब उनको कहा जाता है कि आज से आप इस ऑफिस में काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वी आर हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ दोज पीपल. We are damaging the repute of the organization. We are damaging the relationship. So these are really very important area
areas we need to consider during the downsizing process. Now let us talk about what is downsizing. Now, downsizing, it is a process of reducing the number of employees within an organization by eliminating jobs. Now this is the most simplest definition of downsizing. So आप अपने number of employees को reduce करें, उसके number को reduce करें. For example, आपके पास 100 employees काम करें, and when you decide कि जी आज से like सिर्फ 70 employees काम करेंगे, तो 30 employees 30 number को आप reduce करें, तो it means कि आपने वो 30 jobs जो हैं वो eliminate कर दी हैं. No more. Talking further about downsizing, a downsizing strategy improve its financial performance according to Robbins and Pierce 1992. Now that is another part of the picture. According to certain philosophers and researchers and specialists, they are of the view that downsizing can improve financial performance of the organization. Of course, when you are cutting jobs, for example, you are paying, like for example, 2 million rupees as salary to all of your employees. So when you cut, like for example, 30% employees, so there is a reduction of 30% expense in salary. तो आपकी जो आपकी total expense है salary के ऊपर, उसमें 30% जब उसमें reduce होगा, तो definitely this will improve the profitability of the organization according to these researchers, Robbins and Pierce. Further, a reduction of the workforce is one of only several possible ways of improving profitability or reducing cost. जैसे कि हमने अभी बात की कि profitability को increase करना, maximize करना, that is the major purpose of an organization. और cost reduction करना, that is another important area. So profitability को maximize करने के लिए the best thing is to reduce the cost. और cost reduction के लिए one of the many strategy is to go for downsizing. Why do firms downsize? This is really one of the most important questions. First answer is it reduces cost. कि आप downsizing करते हैं और आपकी cost reduce होती है. Like for example, number one thing is आपका salary expense कम हो जाता है. One thing. Secondly, जब 30% for example अगर आपने 30% employees को downsizing में आप लेके आए हैं, तो वो जो 30% employees हैं, they were using different resources of an organization. Like for example, their like office, their office space they are using, and then different like lights, this computers, different equipment. So they use different facilities of an organization. तो जब वो 30% लोग आप कम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो जो फैसिलिटीज यूज कर रहे थे वो कॉस्ट भी उसकी सारी बात है कम हो जाएगी, वो फैसिलिटीज में जो आपका एक्सपेंस आ रहा है. It reduces layers of management to increase decision making speed and get closer to the customer. Now this is another important finding when we talk about downsizing, that there are different layers of management. Like for example, low management जो है वो middle management को एक अपना feedback दे रही है, middle management जो है वो top management को अपना feedback दे रही है. So there are many layers. Like एक ही letter आपका 10 जगहों से होके chief तक पहुंचता है. तो there are different layers between you and the top management. So when you do the downsizing, what happens that कि there are few layers जो वहां से eliminate हो गई. For example, अगर 10 layers हैं,
तो आपने उसमें से 2 या 3 लेयर्स को एलिमिनेट किया उन जॉब्स को, तो आपकी 10 की जगह 7 लेयर्स रह गई. सो दैट रिड्यूसेस द टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स टाइम जो है उसको वो रिड्यूस कर रहा है कि फिर जो आपको 10 जगहों से उस अपने लेटर को मूव करके चीफ तक लेके जाना था, तो आफ्टर डाउन साइजिंग आपको 7 अप्रूवल्स चाहिए. सो डेफिनेटली वो जो 3 जो लेयर्स आपने एलिमिनेट की हैं, वहां से जो है आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंप्रूव हुआ है. सो यू टेक लेस टाइम फॉर लाइक पुटिंग फॉरवर्ड एनीथिंग एंड गेटिंग अप्रूवल और गिविंग योर फीडबैक. तो वो आपका एक रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्विक हो जाता है एंड यू कैन बीट योर कंपेटिटर्स इन अ मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर एज कंपेयर टू कि जब आपकी ज्यादा लेयर्स होती हैं. एंड देन you get closer to the customer. Of course, what the customer want these days? They need the quickest, best service. And how that is possible? That is only possible if you remove those unnecessary layers. So you come closer to the customer, and once you come closer to the customer, there are more chances that you are getting the direct feedback from the customer. So it is more understanding and less communication barriers. क्योंकि जितने ज्यादा आपकी मैनेजमेंट लेयर्स होंगी, आप कस्टमर से जितना दूर होंगे, उसका एक डायरेक्ट रियल फीडबैक आप तक उस तरह नहीं पहुंचेगा. तो डेफिनेटली कस्टमर के जितना आप क्लोज होंगे उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उतना ही उस कस्टमर के लिए बेहतर है. और वही कस्टमर आपका जो है वो आपका लॉयल बन जाता है व्हेन यू गेट मोर क्लोजर टू द कस्टमर. एंड दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डाउनसाइजिंग, एंड दैट इज व्हाई फर्म्स डू दैट डाउनसाइजिंग प्रोसेस. Downsizing sharpen focus on core competencies of the firm and outsource non-essential activities. ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है इन डाउनसाइजिंग. कि आप देखते हैं कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जो कोर एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हैं, और जो आपकी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं जो कि स्ट्रेटेजिक नोयत की नहीं है, वो आप आउटसोर्स कर देते हैं. ना आउटसोर्सिंग मींस कि एक एक्टिविटी करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका पेरोल सिस्टम है, लाइक सैलरी का एक आपका डिपार्टमेंट है जो कि तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी बनाता है और उनको आपने हर मंथ में सैलरी देनी है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ओन डिपार्टमेंट जो कि पेरोल को डील करे, आप ये करते हैं कि अपने पेरोल जो एक्टिविटी है, पेरोल डिपार्टमेंट की जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप आउटसोर्स कर देते हैं. आउटसोर्स मीन्स कि आप किसी और पार्टी को ये एक्टिविटी दे देते हैं. उनको कहते हैं कि आप हमारा पेरोल बना दिया करें, वी विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट. और जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो उसके मुकाबले में बहुत कम है इफ यू हैव योर ओन पेरोल डिपार्टमेंट. लाइक अगर आप अपना पेरोल डिपार्टमेंट रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल टाइम एम्प्लॉयज रखने, उनको तमाम फैसिलिटीज देनी है, एंड हर चीज का आपने डेफिनेटली उनको तमाम चीजों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है. सो दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट आपने क्या किया कि चूंकि ये एक नॉन एसेंशियल एक एक्टिविटी है, तो डिसीजंस तो डेफिनेटली इंक्रीज डिक्रीज के आपने लेने हैं. तो वो जो एक वर्क है, लाइक फॉर एग्जांपल के जो डिसीजंस आपने ले लिए, उन डिसीजंस को लाइक फॉर एग्जांपल सैलरीज में कन्वर्ट करना और सैलरी का प्रॉपर एक पेरोल बना के हर मंथ उसको आपको प्रोड्यूस करना. सो यू आउटसोर्स दैट एक्टिविटी and that reduces the load on your human resources, and that reduces the cost of the activity. Another reason why firms go for downsizing is it generates positive reactions from shareholders. Now, who are the shareholders?
शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, और डेफिनेटली जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो व्हाट दे वांट प्रॉफिट्स, दे वांट बेटर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो जब आप कॉस्ट कटिंग करते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को आप इंप्रूव करते हैं, जब आप कस्टमर को लॉयल करते हैं, जब आप व्हेन यू कम क्लोजर टू द कस्टमर, और ऑफ कोर्स व्हेन यू कम क्लोजर टू द कस्टमर, तो आप जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे टू प्रोवाइड better quality of products and giving better quality of services to your customer, that will be better than your competitors. So of course shareholders, they will smile, they will be happy. So in order to satisfy, in order to generate positive responses from your shareholders, downsizing helps you a lot. And at the end, there is another finding that it increases the productivity of an organization, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है डाउनसाइजिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, कि आप अपनी मैनेजमेंट लेयर्स आपने कम की, आपका डिसीजन मेकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया, आप कस्टमर को आपने लॉयल कर लिया, आपके ओवरऑल एक्सपेंस कम हुए, आपने बहुत सारी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को आपने आउटसोर्स कर दिया। तो इट मींस दैट कि जब आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, तो दैट कैन इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अनदर finding, like other side of the picture, is downsizing does not guarantee improvements or cost savings. Now this is another major finding. So according to certain researches, there is no guarantee that if you go for downsizing, this will improve your productivity and profitability, और आपकी cost saving होगी. And the root cause is it can have a devastating impact on employee morale. Now, employee morale is really very important. Employee interest is really very important. Employee motivation level is really very important. Is it possible? Okay, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आपकी मोटिवेशन नहीं होगी, तो आप अपनी असाइनमेंट्स में, अपने एग्जाम में, और ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो क्या आप इस लेक्चर को किस तरह आपकी लर्निंग होगी कि नहीं? तो डेफिनेटली जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, जो लोग मोटिवेटेड नहीं होते, तो वो अपने काम में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। वो कोई भी एक्टिविटी हो जाए ऑफिस में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या जस्ट पासिंग टाइम, कि ठीक है ऑफिस बैठे हुए हैं, काम हो रहा है, रूटीन का काम हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जानी है। तो जब इस किस्म का एटीट्यूड हो जाएगा एम्प्लॉइज का, मोरल डाउन होने की वजह से, मोटिवेशन लेवल डाउन होने की वजह से, तो आप मुझे बताएं, तो हाउ वी कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जब परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? How you will be able to beat your competitors? How you will be able to set the benchmarks in the market? Of course not possible. So जैसे हमने शुरू के लेक्चर में बात की, इस लेक्चर के शुरू में बात की, कि आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि डाउन साइजिंग में आप नंबर को सिर्फ नहीं देखेंगे, आपको ये भी देखना है कि जो लोग डाउन साइजिंग के नतीजे में आपको छोड़ के जा रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं बाय बाय, और जो लोग रिमेनिंग हैं, जो रह गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको हम सर्वाइवर्स कह रहे हैं, तो उनके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट है, एक नेगेटिव इंपैक्ट है। आपके कुछ साथियों को कह दिया गया कि आज से आप ऑफिस नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली एक हाई स्ट्रेस हो जाती है जो सर्वाइवर्स हैं, जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज हैं। तो फिर वो अपनी बेस्ट सर्विसेज कैसे दे सकेंगे? और जैसे हम अक्सर अपने लेक्चर्स में बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है
कि वहां क्रिएटिविटी हो, वहां इनोवेशन हो। तो जब तक क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। और ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए पीस ऑफ माइंड इज वन वाइटल थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। जब तक हम अपने एम्प्लॉयज को पीस ऑफ माइंड नहीं देंगे, हम उनसे बेटर परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। जब तक हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने एम्प्लॉयज का मोरल अप नहीं करेंगे, वी कैन नॉट इंश्योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। Now let's look at the downsizing issues in 2011 according to ISNA survey. After downsizing, पूरी एक सर्वे किया गया कि इसकी फाइंडिंग्स थी कि आफ्टर डाउनसाइजिंग सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ, जो लॉसेस हुए, जो इश्यूज चैलेंजेस क्रिएट हुए, वो फाइनेंशियल थे। देन नंबर 2 इशू जो उसके बाद अराइज हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वाज ऑफ हाई स्ट्रेस एंड इन सम केसेस लो स्ट्रेस एज वेल। सो बोथ आर नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। When people become careless, when their attitude behavior becomes careless, they are in low stress. और जब आप छोटी छोटी बात के ऊपर आप अपना टेम्पर लूज करते हैं, you are in high stress. तो ये दोनों सिचुएशंस मिला के देखा गया कि फाइनेंशियल के बाद जो दूसरा एक मेजर इशू और चैलेंज ऑर्गेनाइजेशंस ने फेस किया आफ्टर डाउनसाइजिंग इज ऑफ स्ट्रेस। देन लीगल इश्यूज, कि डेफिनेटली जब आप डाउनसाइजिंग करते हैं तो जिन एम्प्लॉइज को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर रहे हैं, दे टेक यू इन कोर्ट, दे टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। सो कोर्ट इश्यूज आर देयर एंड देन ऑफ कोर्स वायलेंस। बहरहाल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में यह भी हुआ कि जब डाउनसाइजिंग की गई और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोगों को अलग किया गया तो उन्होंने वायलेंस किया और इस तरह की एक्टिविटीज हुई ऑफ कोर्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूट। सो देयर इज नो परफेक्ट वे टू हैंडल डाउनसाइजिंग दैट फील्स राइट और गोज वेल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। सो कोई परफेक्शन नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक ऐसी डाउनसाइजिंग कर पाएं जो कि अच्छी फील हो सबको, जो अच्छी तरह से आप उसको मैनेज कर सके और उसके अंदर तमाम लोग सेटिस्फाई हों जिनको आप अलग कर रहे हैं और जो आपके सर्वाइवर्स हैं। तो ये अगर सब लोग फॉर एग्जांपल इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उनको सेटिस्फाई कर सकें, बट आज की प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे कि एज ए लीडर आप किस तरह से इस प्रोसेस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और नियर परफेक्शन आप कैसे जा सकते हैं। We will discuss in this lecture. So, what happens to the organization after downsizing? Let's look at the picture. Employees can turn into headcounts where there is a decreased emphasis on understanding the personal impact of downsizing and change. Now, this is really very important. Some employers what they do is वो कहते हैं ठीक है हमारे पास 100 एम्प्लॉइज थे, अब हमारे पास 70 हैं, सो हमारा काम चल रहा है, बट दे आर ओनली काउंटिंग द हेड्स। सो आप सिर्फ अगर हेड काउंट कर रहे हैं कि आपके पास कितने नंबर हैं, कितनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, and you are not taking care of the feelings of the people, you're not taking care of the motivation level of your employees, then of course it is a big blunder. और इस किस्म का ब्लंडर जब किया जाता है कि आप एम्प्लॉइज की फीलिंग्स को उसको उसके कंसर्न नहीं है, आप उनके मोटिवेशन लेवल से कंसर्न नहीं है, आप सर्वाइवर्स की प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न नहीं है, एंड यू आर जस्ट सेइंग कि जी पहले 100 थे अब 70 हैं और 70 से भी हम काम चला सकते हैं। तो इस किस्म की जब अप्रोच होगी तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल।
Stress typically increases in response to restructuring or increased workload. अच्छा, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस की जो बेसिक डेफिनेशन है दैट सेज कि व्हेन यू परसीव, व्हेन यू थिंक दैट यू आर अनएबल टू मैनेज द सिचुएशन, यू गो इन स्ट्रेस. और जितनी ज्यादा आपकी इस बारे में फीलिंग्स, थिंकिंग या परसेप्शन स्ट्रांग होती है कि भाई मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, उतना आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है. और जब आप लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग कहते हैं कि आई कैन मैनेज द सिचुएशन, तो उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल के ऊपर होता है. और जो लोग केयरलेस हो जाते हैं उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो लो पे आ जाता है. So according to research, there are 3 levels of stress: high stress, moderate stress, and low stress. And the best recommended level is moderate level of stress. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपने की होगी कि कुछ लोग हैं वो दे आर बिजी बट बड़े सुकून से अपना काम कर रहे हैं. But there are few examples of people like that in organizations कि वो 6-6, 8-8 काम कर रहे हैं, multiple, multitasking कर रहे हैं. But when you meet them, when you see them, when you observe them, they are calm, they are very confident. Then try not to lose their temper. So they have a moderate level of stress. तो यहां जब हम बात करते हैं कि जब वर्कलोड इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके पास 100 एम्प्लॉइज थे, 30 को आपने डाउन साइजिंग में आप ले आए और आपके पास रिमेनिंग 70 हैं, तो सारी बात है कि वो जो 100 का काम है जब वो 70 को करना पड़ेगा तो वर्कलोड डेफिनेटली विल इंक्रीज. और जब वर्कलोड इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, उसमें क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज होगा, आपकी एक हेल्थ डेफिनेटली उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. उसके अलावा डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल आपका जो है हाई या लो की तरफ जा सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा, जारी बात है कि उसको आप लोड को जब सीरियसली लेंगे तो आपका हाई स्ट्रेस हो जाएगी. और कुछ लोग ये करते हैं कि वो बिल्कुल ही केयरलेस हो जाते हैं, वो कहते हैं इतना ज्यादा काम है, हो तो सकता नहीं है, चलो अब कौन करे. तो जब आप चीजों को क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे, सिर्फ आप क्वांटिटी की, नंबर की बात करेंगे, जैसे कि शुरू में हमने बात की कि अगर एम्प्लॉयर हेड काउंट की तरह आपको ले रहा है कि हाँ जी ठीक है मेरे पास इतने लोग हैं, और वो एम्प्लॉइज भी अगर अपने काम को इसी तरह करेंगे कि क्वांटिटी को फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, तो आप ये बताएं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में इंप्रूवमेंट कहां से लेके आएंगे, हम अपने कस्टमर को बेटर देन कंपैटिटर सेटिस्फाई कैसे करेंगे, हम अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बनाएंगे. सो इन डाउन साइजिंग स्ट्रेस लेवल नॉर्मली हाई की तरफ चला जाता है और उसकी हमने रीजंस डिस्कस किए अभी. द वर्क एनवायरमेंट इज मार्क्ड बाय फियर ऑफ जॉब लॉस एंड पेरोनिया, बोथ रियल एंड इमेजिन्ड. पेरोनिया कहते हैं कि एक आपकी एक सोच होती है जो एक तो हकीकत पे भी मबनी होती है कि कुछ एम्प्लॉइज को, जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट है कि कुछ एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया गया, जो एम्प्लॉइज नहीं छोड़ना चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन को, उनको फोर्सली जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर दिया गया. तो एक तो ये फैक्ट है, और दूसरी तरफ और इस फैक्ट की वजह से एक जारी बात है फियर ऑफ जॉब लॉस आपको भी हो गया. दूसरा एक इमेजिन्ड है पेरोनिया कि आप ये कहते हैं कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये कभी भी मेरे साथ हो सकता है. तो ये जो रियल और इमेजिन्ड पेरोनिया है ये बहुत ज्यादा आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज कर देता है, और ये मोस्टली एम्प्लॉइज के अंदर ये चीज एक क्रिएट हो जाती है आफ्टर डाउन साइजिंग. द फोकस ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैन चेंज टू जस्ट बी ग्लैड यू हैव ए जॉब. होना तो ये चाहिए कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होनी चाहिए,
एम्प्लॉय लॉयल्टी होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एम्प्लॉय फुली इन्वॉल्व हो, मेंटली फिजिकली हाईली मोटिवेटेड हो अपने काम में, क्वालिटी कॉन्शियस हो। तो बजाय ये होने के एक चेंज हो जाती है आपकी डायरेक्शन, और एक आपके दिलो दिमाग में एक चीज आ जाती है कि जो आपको ऐसे लगता है कि जस्ट बी ग्लैड यू हैव ए जॉब, कि शुक्र करें आपके पास जॉब तो है। तो जब आप इस तरह की फीलिंग्स क्रिएट होंगी, इस तरह की परसेप्शन क्रिएट होगी, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि शुक्र करें आपके पास जॉब तो है, तो फिर आप मुझे बताएं कि हम बेटर क्वालिटी कहां से लेके आएंगे। Resources shift away from softer people issues like diversity, learning, safety, and instead focus on economic or business outcomes. तो जब एम्प्लॉइज को देखा इस तरह से, अगर एम्प्लॉयर देखेगा कि कौन सा एम्प्लॉय मुझे कितना बिजनेस ला के दे रहा है, कौन सा एम्प्लॉय जो है वो मेरे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कौन सा एम्प्लॉय जो है वो एक मंथ में मुझे कितना वो ला के दे रहा है प्रॉफिट, तो जब इस किस्म की चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे और एम्प्लॉय जो लर्निंग है, उनकी सेफ्टी है और उनके जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं उसको जब आप इग्नोर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इश्यूज में आपके डेफिनेटली एटीट्यूड एंड बिहेवियर भी आ जाता है एम्प्लॉइज का। और यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। नाउ एटीट्यूड मीन्स दैट योर थिंकिंग, योर परसेप्शन, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो नीयत इज योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज the action part. So both are highly interrelated. So which is more important, attitude or behavior? More important is attitude, because attitude is the source and behavior is coming out of that source. So when you bring positive changes in the thinking and perception of a person, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। बट इफ यू फोकस ओनली ऑन द बिहेवियर एंड नॉट ऑन द एटीट्यूड, तो देन व्हाट हैपेंस दैट वी सी कॉस्मेटिक बिहेवियर्स। जैसे लोग एक नुमाइशी किस्म का बिहेवियर होता है कि वो कहते कुछ है बट उनकी सोच कुछ और होती है। The impact of surviving employees after downsizing. Threat of job loss can increase the risk of workplace accidents, as surviving employees show less concern for safety in order to meet production standards, according to 2010 Journal of Occupational Health. Now that is another crucial finding regarding downsizing and its impact. कि जब आप वर्कलोड इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय ने, फॉर एग्जांपल अगर 8 आवर्स हैं पर डे जो उसके वर्किंग आवर्स हैं, तो 8 आवर्स में अगर आपने उससे पहले इतना काम ले रहे थे, आफ्टर डाउन साइजिंग जाहिर बात है कुछ लोगों को आपने अलग कर दिया तो उसका वर्कलोड बढ़ गया। जब वर्कलोड बढ़ गया तो पहले जो अपना वो काम एक जो उसकी ओरिजिनल असाइनमेंट थी उसमें वो क्वालिटी दे रहा था, उसमें वो केयरफुल तरीके से काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं तो वो अपनी सेफ्टी को भी देख के काम कर रहा था। जब आप उसके काम को, उसके वर्कलोड को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली अब आप उसको टारगेट्स दे रहे हैं। टारगेट्स जो है वो अनरियलिस्टिक हैं और अगर वो टारगेट्स अचीव नहीं करता तो आप उसका नाम लिख देते हैं कि ठीक है जी, इसको भी जो है अलग किया जाए। ऑन द अदर साइड एम्प्लॉय के लिए एक जॉब जो है जिंदगी मौत का मसला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट पाकिस्तान में बहुत हाई है। तो जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा मार्केट में तो एम्प्लॉय के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो टारगेट को अचीव करे किसी भी सूरत में।
और जब आप अपने टारगेट्स को किसी भी सूरत में अचीव करने की कोशिश करते हैं तो यू स्टार्ट इग्नोरिंग दी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप ज्यादा रिस्क लेके काम करते हैं, और जब आप ज्यादा रिस्क लेके काम करते हैं तो देयर आर मोर चांसेस एक्सीडेंट्स होने के। तो एम्प्लॉइज दे कंप्रोमाइज ऑन देयर हेल्थ एंड सेफ्टी इन ऑर्डर टू मीट द अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो कि एम्प्लॉयर ने उनको दिए हैं। सो उसमें एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो रहे हैं, उसमें हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। Another impact of downsizing on the surviving employees is there is increased physical complaints, stress, abuse, and domestic social problems among the employees. Physical complaints बहुत सी देखी गई कि पहले से ज्यादा बढ़ गई, कि लोगों को लाइक फॉर एग्जांपल बैक बोन्स में तकलीफ शुरू हो गई, कुछ लोगों को लेग में पेन शुरू हो गई, कुछ लोगों को हेडेक बहुत ज्यादा हो गया, और इस तरह की मुख्तलिफ फिजिकल कंप्लेंट्स लोगों को शुरू हो गई आफ्टर डाउनसाइजिंग। स्ट्रेस लेवल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया वो बहुत ज्यादा या तो हाई हो गया या लो हो गया, एंड देन एक अब्यूज शुरू हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, एक लेग पुलिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई। पीपल दे स्टार्ट टेकिंग अब्यूजिंग ईच अदर कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर शिफ्ट करने का एक नेगेटिव एक बिहेवियर शुरू हो गया ऑर्गेनाइजेशन में। एंड डोमेस्टिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स जब ऑफिस में हाई स्ट्रेस लेवल होगा, ऑफिस में प्रॉब्लम होगी, ऑफिस में आपका वर्कलोड मल्टीप्लाई होगा, तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा आपकी पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ पे, आपकी सोशल लाइफ पे। घरों में ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दोस्तों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि जब आप हाई टेंशन के साथ, हाई स्ट्रेस के साथ अपने घर जा रहे हैं ऑफिस से, घर में आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपकी स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके एल्डर्स हैं, जरा सी बात पे आप गुस्से में आ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये जो डाउन साइजिंग है ये ना सिर्फ ऑफिस की हद तक है, बल्कि इसका इंपैक्ट ऑफिस से बाहर भी बहुत ज्यादा है। क्राइम, वर्क प्लेस थेफ्ट, वायलेंस एंड सुसाइड रेट्स टेंड टू इंक्रीज। सो अनदर like major impact on surviving employees is that crime rate बढ़ जाता है। लोग कोई भी जुर्म करने से जो है वो शर्माना बंद कर देते हैं। उनको लाइक फॉर एग्जांपल उनको यही होता है कि किसी भी सूरत में उनको रिवॉर्ड मिले और वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें। सो क्राइम रेट इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू रिसर्च। वर्क प्लेस थेफ्ट, लोग ऑफिस में एक दूसरे की चीजें या ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को चोरी करना शुरू कर देते हैं। वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, लड़ाई झगड़े, मारपीट काफी हद तक बढ़ जाती है, और इवन सुसाइड रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओवरऑल जब हम डाउन साइजिंग इफेक्ट्स की बात करते हैं, सो देयर आर मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑन फर्म परफॉर्मेंस, some short-term cost savings, but long-term profitability and assessment not strongly affected. Here, as a specialist of this area, I believe that short-term cost saving जरूर है कि आपने अगर जितने एम्प्लॉयज को डाउन साइज किया है तो जारी बात है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे थे, वो कॉस्ट रिडक्शन डेफिनेटली है इन शॉर्ट रन। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं देखा गया। उसकी रीजन, जो मेजर रीजन है वो ये है कि जो सर्वाइविंग एम्प्लॉयज हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनका मोरल डाउन होता है, उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होता है, उनकी कमिटमेंट जो है वो बैडली डैमेज होती है। तो फिर जब आप बेटर क्वालिटी और बेटर सर्विस नहीं देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो सकती है। फर्म्स रेपुटेशन
एज ए गुड एम्प्लॉयर सफर्स, कि ऑर्गेनाइजेशन की एज ए गुड एम्प्लॉयर जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, क्योंकि लोग ये आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो ये किसी भी वक्त हमें यहां से फारिग कर देंगे, और जब ये हमें फारिग करेंगे तो एक मार्केट के अंदर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट तो डैमेज होगी। एक और रिसर्च के मुताबिक कि जिन एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन से डाउनसाइजिंग के नतीजे में अलग किया जाता है, दे आर नॉट एबल टू गेट द इक्वल लेवल ऑफ जॉब इन द मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट एम्प्लॉयर जो है उनसे पूछता है कि पिछली जॉब आपने क्यों छोड़ी, और जब वो बताते हैं कि डाउनसाइजिंग के नतीजे में उनको वहां से फारिग किया गया, तो जो आपका नेक्स्ट जो पॉसिबल एम्प्लॉयर है वो डेफिनेटली फिर इस चीज के ऊपर उसकी एक ऑब्जर्वेशन होती है कि आपने कुछ तो किया होगा ऐसा जिसकी वजह से आपको वहां से फारिग किया गया। तो नॉर्मली ये देखा गया कि जिन एम्प्लॉइज को डाउनसाइजिंग के नतीजे में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करते हैं उनको सेम लेवल की जॉब मार्केट में इन मोस्ट केसेस नहीं मिलती, लो लेवल की जॉब्स मिलती हैं। सो इससे हमारी लर्निंग क्या हुई कि जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट मार्केट में पर्सन्स मौजूद हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को, उसकी क्वालिटी को, वो लोग दे अवॉइड टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ योर बैड रिप्यूट एज ए गुड एम्प्लॉयर, कि आप अपने एम्प्लॉइज को यहां से फारिग करते हैं, इसलिए जो बेस्ट लोग होंगे मार्केट में, मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग होंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। तो मीनिंग दैट कि आप मार्केट में फिर आपको एक अपनी बेंचमार्क सेट करना और एक सर्वाइवल आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर एप्पल कंप्यूटर्स रेपुटेशन एज गुड एम्प्लॉयर डिक्लाइंड आफ्टर सेवरल ले ऑफ्स इन 90s। Now, Apple Computer is a big company. तो 90s में जब इन्होंने बहुत सारे ले ऑफ्स किए, बहुत सारे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अलग किया, तो उनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत बैडली डैमेज हुई और एक नेगेटिव उनका एक रिप्यूट क्रिएट होगी मार्केट में कि पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एप्पल कंप्यूटर के इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना क्योंकि ये अपने लोगों को यहां से फारिग करते हैं विदाउट देयर फॉल्ट। और इसका इंपैक्ट सिर्फ यहां तक नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन रिप्यूट जब डैमेज होती है तो डेफिनेटली आपके शेयर होल्डर्स भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो शेयर प्राइस है स्टॉक एक्सचेंज में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पीपल दे वो जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं दे आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि एप्पल कंप्यूटर ने अपने एम्प्लॉइज के साथ बुरा किया तो इनकी प्रोडक्ट्स आज से मैं नहीं लूंगा। तो ये एक सीरीज ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं आफ्टर डाउनसाइजिंग जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो सकते हैं। डाउनसाइजिंग फोर्सेस रीथिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी, लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज नॉट क्रेडिबल आफ्टर अ डाउनसाइजिंग। कि एक कॉन्सेप्ट है कि लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, कि आप ऑर्गेनाइजेशन ए को ज्वाइन करें और आप अपनी पूरा करियर इस ऑर्गेनाइजेशन में बनाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, यह बहुत बुरी तरह डैमेज होता है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग करती है तो उनकी जो लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो बहुत बुरी तरह डैमेज होती है। Now let us talk about the downsizing effects on employee morale. Employee motivation disrupted. There is increase in political behaviors, anger, fear, which is likely to negatively impact quality of work. So एक political behavior शुरू हो जाता है organization के अंदर, motivation level decline होता है, लोग बहुत ज्यादा सियासत करना शुरू कर देते हैं, जोड़ तोड़ करना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग वहां पे शुरू हो जाती है, एंगर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है लोगों में कि छोटी छोटी बात के ऊपर वो गुस्से में आ जाते हैं
क्योंकि सिंस दे आर इन हाई स्ट्रेस और लो स्ट्रेस, तो किसी भी बात पे बहुत ज्यादा जल्दी एंग्री हो जाते हैं। एक फियर अमंग एम्प्लॉइज आ जाता है कि उनको खतरा ये होता है कि नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी डाउन साइजिंग की, उसमें कहीं मेरा नाम ही ना हो। एंड ऑल इसका ओवरऑल जो इंपैक्ट है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डिक्लाइन होती है। देयर इज वायलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट लीड्स टू डिस्ट्रस्ट एंड लोड वर्क कमिटमेंट। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो एक तो आपका रिटन एग्रीमेंट है कि जी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किया है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी आपने उसको फॉलो करना है। तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपको सैलरी दी जाएगी, ये आपके बेनिफिट्स हैं, वो तमाम एक एग्रीमेंट आपने साइन किया हुआ है, दैट इज रिटन एग्रीमेंट। बट एक और एग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिटन नहीं होता। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपकी उसके साथ एक कमिटमेंट होती है, एक लॉयल्टी होती है, एक जज्बा होता है, एक इंटरेस्ट लेवल होता है, एक मोटिवेशन होती है, जो कि अनरिटन है। लेकिन आफ्टर डाउन साइजिंग वो जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ, वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट करके आए हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना एक कैरियर बनाने आए हैं, और जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, आपकी जो लाइफ लॉन्ग आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जब वो डैमेज होता है तो यू आर बैडली हर्ट, और आपका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की वो वायलेशन हो जाती है, और आपका मोटिवेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। सर्वाइवर्स एक्सपीरियंस मोर स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गर वर्क आवर्स with redesigned jobs and increased uncertainty regarding future downsizing। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग आवर्स की वजह से डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, और फ्यूचर डाउनसाइजिंग की वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है अमंग एम्प्लॉइज। सो दे आर इन डाउट, दे आर अनसर्टेन कि आगे पता नहीं, फियर ऑफ द अननोन शुरू हो जाता है कि आगे पता नहीं क्या होने जा रहा है मेरे साथ यहां पे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट डाउनसाइजिंग इफेक्ट्स ऑन वर्कफोर्स क्वालिटी। Many senior employees leave due to application of early retirement incentives. Result is loss of institutional memory. Now, एक तो वो employees हैं जिनको आपने अलग किया, तो जो एम्प्लॉइज रिमेनिंग है ऑर्गेनाइजेशन में, जिनको हम सर्वाइवर्स कह रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो मोस्ट कॉम्पिटेंट हैं, उनको जॉब्स का कोई मसला नहीं है, उनको मार्केट में आसानी से आपके जो मेजर कंपैटिटर्स हैं उनको जॉब देने के लिए तैयार हैं। वो अपने तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अर्ली रिटायरमेंट लेके, इंसेंटिव्स लेके आपको छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट इज ए बिग लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, और जब आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी आपको छोड़ के जाना शुरू कर देती है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। यूज ऑफ वॉलंटरी वर्कफोर्स रिडक्शंस, buyouts result in the most marketable employees leaving, and then early retirement and voluntary reductions often result in too many people quitting, and some are hired back as consultants at higher cost to firm. Now another very interesting जो finding है downsizing की, कि एक तरफ तो employees को आप फारिग कर रहे हैं, आप उनको अलग कर रहे हैं, तो जब आप अलग करते हैं तो डेफिनेटली आप उनको गोल्डन हैंडशेक दे रहे हैं, आप उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और उसके बाद जब आपने उनको अलग किया, उसके बाद डेफिनेटली वर्क लोड जब इंक्रीज हुआ, क्वालिटी डिक्लाइन हुई, तो यू रीहायर मोस्ट ऑफ दोज पीपल जिनको आपने फारिग किया था ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज कंसल्टेंट्स। तो जब आप रीहायर करते हैं उनको, तो आपकी कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाती है। Now let us talk about different alternatives to downsizing according to these Gomez, Mejia, Balkin and Cardy 2011.
सो बिफोर वी गो फॉर डाउन साइजिंग, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग करने से पहले इन अल्टरनेटिव्स को देख ले और इन अल्टरनेटिव्स को फोकस करें कि बजाय ये कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन से अलग करें, उससे पहले अगर इन अल्टरनेटिव्स को अप्लाई कर लिया जाए तो वी कैन इंप्रूव द सिचुएशन। एंड इन मोस्ट केसेस होता यह है कि जब आप इन अल्टरनेटिव्स को अप्लाई करते हैं तो इन मोस्ट केसेस डाउन साइजिंग ऑफ एचआर की जरूरत ही नहीं रहती। ओके, लेट अस टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एज वन ऑफ द alternatives to downsizing. What you do is, first of all, you freeze the hiring. आप मजीद लोगों को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना उनकी रोक देते हैं आप। वॉलंटरी टाइम ऑफ, जो लोग एज ए वॉलंटियर टाइम ऑफ लेना चाह रहे हैं, रजाकाराना तौर पे आप टाइम ऑफ लेना चाह रहे हैं, आप उनको ओके सिग्नल दे देते हैं और जो वो टाइम ऑफ लेते हैं उस टाइम ऑफ को उनको पे नहीं किया जाता। रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स, के बजाय ये कि लाइक फॉर एग्जांपल 8 आवर्स एम्प्लॉइज काम कर रहा है तो आप 8 आवर्स की जगह उसको 6 आवर्स 5 आवर्स के लिए बुलाते हैं, बाकी 5 आवर्स का आप उसको पे करते हैं, 3 आवर्स का आप उसको पे नहीं करते। सो दैट रिड्यूसेस द कॉस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर अल्टरनेटिव टू डाउनसाइजिंग एंड दैट इज कॉल्ड चेंजेस इन जॉब डिजाइन। यू ट्रांसफर पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का लोड जो है वर्क का वो डिफरेंट है, तो उसकी एचआर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो आप ट्रांसफर करके तमाम डिपार्टमेंट्स को उनके वर्कलोड के मुताबिक एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करते हैं विद इन द डिपार्टमेंट और अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। रीलोकेशंस, आप जॉब रोटेशन कर सकते हैं, आप जॉब शेयरिंग कर सकते हैं, डिमोशंस हो सकती हैं कि जो आपके पुअर परफॉर्मर्स हैं उनको आप डिमोशन करते हैं और जब आप डिमोशन करते हैं तो वो हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड की तरफ आप उनको मूव करते हैं, तो आपकी अगेन एक कॉस्ट रिडक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। Another major alternative to downsizing is pay benefit policies. Like पे फ्रीज कर दी जाती है कि आप एम्प्लॉइज की जो इंक्रीमेंट्स हैं या सैलरी इंक्रीजेस हैं वो बंद कर देते हैं और आप कहते हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे आपकी जो पे है उसको हमने एक जगह पे फ्रीज कर दिया है। कट ओवर टाइम पे, कि जो ओवर टाइम है वो देना आप बंद कर देते हैं। यूज वेकेशंस एंड लीव डेज, जो छुट्टी के दिन है उनको आप यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप एम्प्लॉइज को कहते हैं कि दे विल कम इवन ऑन हॉलीडेज एंड लीव डेज। पे के अंदर आप कट करते हैं बेस्ड ऑन दी, लाइक फॉर एग्जांपल इफ सम एम्प्लॉइज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो आप उनकी सैलरी को, उनकी पे को कट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग वेरिएबल पे, अनदर गुड मेथड इज कि आप एम्प्लॉइज को अपने साथ प्रॉफिट शेयरिंग में ले आते हैं या उनकी पे को वेरिएबल कर देते हैं कि जब हमारा फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपकी पे ज्यादा होगी, अगर प्रॉफिट कम होगा तो आपकी पे कम हो जाएगी। Another most important alternative to downsizing, and I would say that the most important alternative to downsizing is of training. So you provide training and development to your employees and then retraining, refresher courses आप कराते हैं employees को, और training की importance I think nobody can deny. Now talking about leadership challenges in downsizing. So these are the challenges. What are fair and effective HR policies for separations and downsizing, and how can legal issues be minimized in separations? So these are the two major challenges in downsizing to leaders. To how to prepare for downsizing? Communication is the key. Give as much warning as possible for downsizing. कि आप लोगों को पहले से वार्न करना शुरू कर दें डाउनसाइजिंग के बारे में ताकि वो अपनी अपनी अरेंजमेंट कर लें, नेक्स्ट जॉब की अरेंजमेंट कर लें। अनाउंसमेंट ऑफ डाउनसाइजिंग मस्ट बी मैनेज्ड। ग्रुप मीटिंग, इंडिविजुअल मीटिंग, और फर्स्ट इंडिविजुअल मीटिंग एंड देन ग्रुप मीटिंग्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गिव फैक्ट्स एंड डिटरमिन वेयर टू होल्ड द मीटिंग। हाउ टू प्रिपेयर फॉर डाउनसाइजिंग मीटिंग्स? नो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स आपको बिल्कुल क्लियर कट मालूम होने चाहिए। एज ए लीडर, डिटरमिन इफ सिक्योरिटी शुड बी प्रेजेंट एंड डिटरमिन हु विल गिव नोटिस एंड व्हेन।
Consider notice given by higher level manager followed by meeting with immediate manager and determine when notice is to be given. Late in the day so employees can leave, or early in the morning before employees arrive. Now talking about in the process of separation, use a private office, sit down one-on-one with the individual, be sure the employee hears about his or her termination from a manager, not a colleague. क्योंकि अगर वो अपने कोलीग से अपनी टर्मिनेशन का सुनेगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा उसको एंगर होगा, लेकिन जब वो अपने मैनेजर से ये सुनेगा और मैनेजर डेफिनेटली उसको रीजन भी बताएगा कि आपको हम क्यों अलग कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से. बी क्लियर, डोंट लीव रूम फॉर कंफ्यूजन. ये ना हो कि एम्प्लॉय जिसको आपने डाउन साइजिंग में उसका नाम है, आप उसको सेपरेट कर रहे हैं तो उसको कंफ्यूजन में डालकर आप कमरा छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि उसके जो कंफ्यूजन हैं, उसके डाउट्स हैं, आप उसको क्लियर करेंगे. एज ए गुड लीडर, पुट एवरीथिंग इन राइटिंग. आप जो बात भी करेंगे और एम्प्लॉय जो बात भी करेगा आपका, आप उसको इन राइटिंग लेके आएंगे. प्रोवाइड रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेपरेशन बेनिफिट्स. और जो सेपरेशन बेनिफिट्स आप एम्प्लॉय को देने जा रहे हैं उसको एक रिटन फॉर्म में आप उसको देंगे ताकि एम्प्लॉय आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सके. Allow no time for debate. Tell the individual in the first sentence he or she is terminated or laid off. Complete a firing session within 15 minutes. That is international standard. Maintain the integrity of all. Don't make personal comments. Keep the conversation professional. जाती किस्म के कमेंट्स आप नहीं देंगे. अपनी कन्वर्सेशन को एम्प्लॉय के साथ प्रोफेशनल रखें. Don't rush the employee off-site unless security is really an issue. Express appreciation for what the employee has contributed, if appropriate. Don't fire or lay people off on significant dates like the 25th anniversary of their employment or the day their mother, father died. And then don't fire employees when they are on vacation or have just returned. So what to say in downsizing? Get to the point quickly, avoid words like fire and terminate, and do not argue. Be prepared to listen sensitively but limit discussion, and further be honest. Tell the employee why he or she is being laid off. आप उसको facts बताएंगे. Honestly आप उसको बताएंगे कि actually क्या reasons हैं जिसकी वजह से आप उनको lay off करें. You may question the poor performance assessment in a variety of ways, but the truth must be told. सच्चाई आपने बतानी है, आपने उसको क्वेश्चन देंगे, आप उसको एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ आप अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसको फैक्ट आप बताएंगे कि आपने क्यों डाउनसाइजिंग में उसको आप सेपरेट कर रहे हैं. For any downsizing due to poor performance, a recent record of poor performance reviews will support your decision and justify it to the employee. It may also be used as evidence if a wrongful dismissal suit is filed against the employer. Be compassionate. Being laid off can be painful. Show the terminated employee some sympathy and understanding. If your company has the capability, provide outplacement services or job counseling to help cushion the blow. And finally, keep the employee ego in mind. You can provide it by praising previous accomplishments. And then, how to complete the downsizing meeting. Listen and acknowledge concerns. Remember, this is not personal. बिल्कुल ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इसको प्रोफेशनल तरीके से आपने डील करना है, आप उसको पर्सनल नहीं लेंगे. Stop giving unnecessary information. The employee is not hearing you. Irrelevant, unnecessary information देने का हरगिज ये मौका नहीं है, क्योंकि जब आपने अपने एम्प्लॉय को कह दिया कि आज से ही इज नो मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देन ही इज नॉट विलिंग टू लिसन टू एनी इररेलेवेंट और unessential thing. Have tissues available because there are more chances of like tears from the person whom you are going to downsize. Offer to end the meeting or give the employee a moment to leave. Further, how to complete the downsizing meeting? Listen intently by concentrating on what the person is saying. Don't interrupt, focus on the employee. Now, employee जब बात कर रहा है
जिस पर्सन को आप डाउन साइज में लेके आ रहे हैं, जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर रहे हैं, लेट हिम और हर टॉक, उसको इंटरप्ट ना करें, क्योंकि अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो वो उसके टेम्पर लूज करने के, ज्यादा एंग्री होने के ज्यादा चांसेस हैं. बी पेशेंट. Hear the employee out in the limited amount of time allotted. Give employees written materials, thank the employee for service and commitment to organization, and discuss reference for future employment if possible. Now, how to prepare for a worst case scenario? Recognizing the angry, threatening employee. आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा employee आपके लिए ज्यादा trouble create कर सकता है? So first thing is early identification is the key, and how you know that कि कौन सा employee आपके लिए ज्यादा कोई problem create कर सकता है. तो like for example, employees who may respond with potential violence are those who continually express discontent, display unmanageable incidents of anger, demonstrate verbal, non-verbal threats or intimidation, verbal plan to hurt self or others, show an inability to take criticism, express feelings of being victimized. So these are the symptoms. इनमें से कोई भी symptom हो तो you know that कि ये वो वाले employees हैं जो कि आपको threat कर सकते हैं और ये organization को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं. Now the question is how to respond to the angry or threatening employee. So as a leader, first thing is have security available before the meeting. Acknowledge person's feelings, establish ground rules if unreasonable behavior persists, use delaying tactics like leave the room, offer water. Accept criticism of the organization or self in a positive way. इस चीज को जहन में रखें कि जो एंग्री थ्रेटनिंग एम्प्लॉई है वो आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ कह सकता है, तो आपने उसके एंगर को, उसके थ्रेट को एक पॉजिटिव वे में मैनेज करने की कोशिश करनी है, ना कि वो आपको गुस्से में कुछ कह रहा है और आप भी उसी तरह गुस्से में उसको रिप्लाई करें. सो दैट विल मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम. बी अ सिंपैथेटिक लिसनर, मेंटेन रिलैक्स येट अटेंटिव पोस्चर. And these are major things you need to consider while responding to the angry, threatening employee. Do not use styles of communication such as disrespect, pose in challenging stances such as standing with arms crossed or at hips, challenge or threaten the individual, attempt to bargain with the threatening individuals, make false statements or promises you cannot keep. So you should never do these things. And how to respond to survivors. जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर डाउनसाइजिंग अब रह गए हैं, रिमेनिंग एम्प्लॉइज, वी कॉल देम सर्वाइवर्स. तो उनके साथ आपने कैसे उनको मैनेज करना है एज अ लीडर? कम्युनिकेट, 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 बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की. दिस कैन minimize, this can help you manage the communication barriers. This can help you manage those doubts and confusions and uncertainty in the minds of the survivors. Recognize, support and reward good performance. Inform about coming changes. Employees को आइंदा आने वाले अच्छे दिनों के बारे में आप बताएं. Provide a realistic picture of organization's future. Listen and show respect. And ask employees their opinion about things. Really very important. Give more importance to the feedback. Further, how to respond to survivors? Acknowledge the right direction and right attitudes. Do not wait until a project is completed. Celebrate small successes. Make training development opportunities available. Offer survivors to share feelings, concerns about the past. Encourage and coach. So these are further recommendations. So as a leader, you can do all of these things to motivate and your employees, improve their morale, and of course, improve their motivation level. And finally, be calm and honest. This is really very important. So before downsizing, during downsizing, and after downsizing, as an ideal leader, you need to be calm and honest. Thank you very much for your kind attention, and I believe that कि आज के लेक्चर में हमने जो लीडर्स रोल है इन डाउनसाइजिंग उसको हमने इन डेप्थ डिस्कस किया.
तमाम मेजर चैलेंजेस को, इश्यूज को हमने डिस्कस किया, हमने मेजर रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया कि हाउ टू मैनेज the downsizing process in an organization. This is one of the most important areas all over the world, including Pakistan. Thank you very much once again, all of you. Inshallah, see you all in the next lecture.